ऑल्दो ड्राफ्ट तो तुमने सबमिट कर दिया होगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? So I'll not Okay, suggest sir. any correction in that, All ठीक right, है? sir. Because it is already uploaded. I'm Kritika Bose. I belong to a family of four. I was born and raised in CR Park, a small Bengali neighborhood in the heart of New Delhi. I completed my schooling from Google School International, known as the Multiculturalism. Known for its multiculturalism, I gathered a deep admiration for cultural diversity as I interacted with the students from across the globe and had the privilege of participating in several festivities as part of the Western Choir. I'm currently about to graduate with honors in applied psychology from Delhi University at college. किस कॉलेज से थे तुम? Shama Prasad Mukherjee College, Punjabi Bagh. At college, I volunteered as a class representative of my batch and was an active member of psychology department. Being a mental health celebration or open mic session, I have a strong interest for research and avid consumer of media. I co-authored a research paper on how media shapes attitude of in our generation. कितने कॉल्स तुम्हारे इसी साइकोलॉजी के अलावा कोई और भी है? नहीं सर, मैंने सिर्फ साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया है. ठीक है. So it was qualitative in nature and explored the influence of social media on the attitude of young adults about human rights. Being a cinephile, I believe films mirror the life and are reflects sociopolitical reality. Yeah. I have been fortunate enough to rediscover my love for cinema and have had the opportunity to analyze films to grasp different aspects of psychology. People who know me best are describe me jealous, resolute, and hard worker. I want to become a mental health professional because I believe everyone deserves to lead a happy and fulfilling life. I want to contribute towards India's fight against the ongoing mental health crisis and aid the promotion of mental health and well-being. ठीक है ये why this course I want to pursue masters in applied psychology program from TEST because I see great. अच्छा इसमें तुमने क्या लिखा है, अगर तुमसे मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? सर मैंने ये लिखा है कि in the future I have plans of becoming a practitioner. So this would provide me the course structure. I like the course structure of this. तो उसमें वो सारे micro skills हैं and different modalities of psychotherapy हैं जो I think would be beneficial for my career. उसके अलावा I've mentioned how I want to study under a faculty of great repute, and they are such experienced scientist practitioners. Uske alawa, I've mentioned that this is involved in several public outreach programs and other initiatives, जैसे Simha है, iCall program है. I would love to learn from them, be associated from them, be involved in such initiatives in future capacity as a professional. And मैंने mention किया है कि lastly I have to mention the culture of this multicultural campus hai, and I would like to interact with individuals from all over India. And I also want to be part of a alumni network that has smoothly transitioned from the classroom setting to field. Hmm. उसके बाद have you done anything related to this course? तो इसमें मोस्टली तो अपना पेपर या फिर कॉलेज का ही कुछ लिखा होगा ना तुमने? Yes, so मैंने कॉलेज की चीजें लिखी हैं. I've mentioned the internships I've attended, और in at school level मैंने अपने स्कूल को represent किया था in a research project which जो हमने एक retirement community में किया था in Coimbatore. I've also mentioned that. Yeah, and I've also mentioned online internships जो lockdown में किया था. चलो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं. Okay, sir. So understanding your program content, इसमें तुमने लिखा है counseling macro skills, training psychological assessment and to SPSS blending focus on ठीक है electives in applied areas of the field like substance abuse and trauma therapy. Outcomes है holistic view of psycho
So psychosocial ability, adaptability of individuals and understanding the theories of counseling and psychotherapy and counseling. ठीक है. Foundation of clinical disorders with reference to latest DSM and ICD criteria and interventions to treat and manage individuals with chronic disorders. Understanding different perspective of qualitative and quantitative research. स्किल और कैपेबिलिटी बेस्ड आउटकम है तुम्हारा काउंसलिंग मॉडलिटीज स्किल ट्रेनिंग टू एड्रेस नीड्स ऑफ मेंटल हेल्थ सेक्टर एंगेजमेंट विद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ऑफ न्यूली इमर्जिंग मेंटल हेल्थ नीड्स ये अवेयरनेस भी तो कंसेप्चुअल आउटकम में ही आ गया ना Oh, okay, sir. हाँ जैसे स्किल या कैपेबिलिटी में समथिंग दैट यू विल स्टार्ट डूइंग है ना और यू हाँ. विल स्टार्ट मतलब विल हैव द कैपेबिलिटी टू डू और परफॉर्म as a अच्छा. researcher or as a or मतलब psychologist or a, anyone मतलब एक होता है ना कि mental health expert Yes, sir. Yes, sir. ठीक है respect for all major profiles roles one can expect from this course psychotherapist counselor clinical psychologist scientist practice my inspiration from this course are to be able to gain understanding of different modalities of My inspiration for this course. क्या है एक correction है, sir. Sorry. बताओ My aspirations for this course होगा नहीं. कोई दिक्कत नहीं है My bad. Yeah. दैट एक्चुअली मैं अभी ज़्यादा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में देख नहीं रहा इसको आई जस्ट रीड द कंटेंट हियर Oh, okay, तो sir. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ करेक्ट तो करना ही चाहिए इफ यू नो दैट देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर तो उसको जरूर इम्प्रूव कर देना चाहिए able to gain understanding of different modalities of therapies broaden my understanding of mental illness I want to accomplish all these goals because I want to develop my own style of integrated therapy ये क्या अलग से स्टाइल होता है क्या हेल्थ का नहीं सर, आई थिंक इतने सारे अलग अलग मेथड्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, मोडालिटीज हैं थेरेपी. मैं अपना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में एक इंटीग्रेटेड थेरेपी बिल्ड करना चाहती हूँ जो हर मोडालिटी के पॉजिटिव्स को समझता है, पॉजिटिव्स को अप्लाई करता है टू अच्छा डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है और प्रोस्पेक्ट्स फॉर सोसाइटी इसमें क्या लिखा है तुमने सर कि जो ये टेस्ट जो फोकस करता है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ अप्लाइड थेरेपीज जैसे जैसे अडल्ट चिल्ड्रन और अडोलेसेंस थेरेपी हो गया या फिर सब्सटेंस अब्यूज फैमिली थेरेपी. दीज हैव अ लॉट ऑफ प्रिडिक्टिव फंक्शन इन सोसाइटी क्योंकि इट कैन प्रिवेंट नेगेटिव मेंटल हेल्थ आउटकम्स इन द फ्यूचर एंड लोगों को ज्यादा रिजिलियंट बना सकता है. उसके अलावा फॉर द नेशन आई बिलीव दैट अगर people have such skills to equip themselves to navigate through life, they will be it would be a deterrent to crime and antisocial behavior और workforce भी ज्यादा productive हो पाएगी. ठीक है गुड है तो तुमने जैसे और भी वो देखे हैं लग रहा है वीडियोस नहीं उसके करेक्शंस के Yes sir, हाँ मैं YouTube पे काफी एक्टिव हूँ. ठीक है नहीं है यू आर डूइंग गुड तो और थोड़ा आप इस पे मतलब सोसाइटी के इम्पैक्ट में थोड़ा वो भी डाल सकते हो मतलब जो सोशल इनिक्विटी है ना वो भी थोड़ा बहुत इससे डील किया जा सकता है नॉट डायरेक्टली बट Yes sir. इनडायरेक्टली इट कैन बी डन Yes sir. Yeah. Okay, I'll keep that चैलेंजेस in mind. चैलेंजेस में क्या लिखा है तुमने मैंने ये लिखा है कि since this course is like focused on integrating theory with practice, तो in this lockdown situation in COVID times हो सकता है कि field practicums को करना मुश्किल हो. नहीं तो ये तो अभी का चैलेंज है ना इन जनरल चैलेंज क्या होगा Oh, okay. In general challenge, I can just think of one thing कि since ये
प्रोग्राम इतना होलिस्टिक है और रिसर्च पे भी फोकस है, फील्ड वर्क पे भी फोकस है और थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, असाइनमेंट्स पे भी फोकस है। तो एज अ स्टूडेंट इट वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क टू जस्ट बैलेंस एवरीथिंग आउट, आई नहीं थिंक। अच्छा, ये जो है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा हमारा एक्चुअली क्या है कि ये वेल रिटन शायद नहीं है लाइन, बट इसमें हम ऐसे लिखना चाह रहे थे कि मतलब ओवरऑल जैसे ये कोर्स है, एक डिपार्टमेंट है, मतलब आई एम नॉट सेइंग व्हाट चैलेंज यू विल फेस, जैसे क्या एक फ्रेटर्निटी, लिमिटेशंस? हाँ लिमिटेशंस भी कह सकती हो, एक फ्रेटर्निटी डेवलप होगी ना ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और साइकोलॉजी रिसर्चर्स। हाँ तो जी। चैलेंजेस ये है हमारे पास कि एक तो स्टिग्मा जो है अबाउट सोशल मेंटल हेल्थ है ना इन सोसाइटी, रिसर्चेस ओके। बहुत मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाते, है ना, हाँ, इंडिया रिसर्चेस में है। रिसर्च बिल्कुल हाँ, वेल फंडेड नहीं है। have a lot of वेल फंडेड भी नहीं है और बहुत कैविट भी है, मतलब पीपल आर नॉट, दे डोंट ओपन अप फॉर रिसर्च। ओके ओके। हाँ, तो अभी जैसे कई सारे आते हैं हमारे पास भी, तो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू reply in whatever we think, in whatever way we think. ओके सर। So इसके बाद जो लोकल कंटेक्चुअलाइजेशन है वो बहुत कम है। राइट। हमारा इवन सारा जो मटेरियल है, कोर्स मटेरियल या जो भी बुक्स हैं, इट्स नॉट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एट ऑल। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो है हमारा चैलेंजेस है, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू, मतलब इसको सही करने की जरूरत है। सो हम्म। मतलब समथिंग दैट यू डू विच विल हेल्प द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ योर्स। ठीक है, ओके ओके। तो ये सब चीजें मिलाकर लिखना था। ठीक है, यहाँ पे my participants who pursue this course I believe will feel heard and understood, and for me the ability of create expressions which allow them to express themselves without judgment। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी में मतलब थोड़ा सा ऐसे कुछ की अपनी बता देते, जैसे एनालिटिकल एबिलिटी है, ओके। ठीक है, एक्सपोजर टू, मतलब डाइवर्सिटी, इसको कुछ लिख लेना, मतलब जो तुमने लिखा है ना उसी से आई एम डिराइविंग इट। हम्म। तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से इंटरेक्ट किया है तुमने, है ना, तो फॉर यू इट विल ओके। बी इजी टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्ट पीपल बिहेवियर्स, ऐसा कुछ। ठीक है सर। तो ये सब लिख दोगे। प्रोफेशनलिज्म एज प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में व्हाट प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, इसमें क्या लिखा है तुमने, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग इन्वॉल्व इन द डेवलपिंग काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आई थिंक हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ethical practices is important for any। हाँ, मतलब ये भी ठीक है, ऑल्दो मतलब इस वर्ड को मतलब ऐसा था कि मतलब कैन आई कॉल समवन हु हैव स्टडीड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम टिस मुंबई एज अ प्रोफेशनल, है ना, तो टू हम्म। कॉल समवन प्रोफेशनल व्हाट डू वी नीड, मतलब वी नीड some of the tasks, some of the activities that you can do which other people who are not studying the same subject can't do, है ना। ओके। तो ऑल्दो मतलब मेरे हिसाब से तो ये पूरा पूरा कोर्स प्रोफेशनल है ना, बिकॉज यू बी लर्निंग अबाउट काउंसलिंग और क्लिनिकल वे टू इंटरवीन, है ना। यस सर। तो दोज आर द थिंग्स व्हिच मेक्स दिस प्रोफेशनल। ओ ओके। ठीक है, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इसमें नहीं है क्या कुछ? मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया सर। इसमें क्वेश्चन ये है, देखो जैसे मैनेजमेंट ओरिएंटेशन हम क्या बोलते हैं, जैसे जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे understanding or knowing management can help you, you know, so whenever you plan something, when you are trying to execute something, when you are trying to make a strategy, है ना, तो वैसे हम्म। केसेस में मैनेजमेंट की जरूरत है, मतलब अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट इज हेल्पफुल। ठीक है, तो ओके। अगर जैसे मान लो कि द इंटायर कोर्स करिकुलम इफ यू फाइंड देयर आर सम एस्पेक्ट where you can apply the management theory of management, है ना, or you can think in management philosophy, तो ऐसा कोई पार्ट है आपके सिलेबस का?
So what would be an example? संपदा तुम Like, बताओ, can you think of anything from your course? Management orientation में ऐसे लिखा था that when we have to organize an intervention based workshop or something related to psychology, so उसमें we have to assure how to go about it. For example, how do we have to set up the workplace? मैंने इस लाइन पे लिखा था मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मतलब मैं हाँ, ये सब मतलब लिखा था। डायरेक्ट इफ यू कैन नॉट फाइंड तो ये तुम लिख सकते हो और इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। Yeah, how we have to तो organize, how we have to schedule the whole thing, तो ऐसे करके लिखा था मैंने। ऑर्गेनाइजिंग okay. Intervention based इवेंट्स, workshop, ये सब। इवेंट्स, वर्कशॉप्स। So, this case, a lot of faculty members have been involved in consultation for kind of uh, consultation of improving educational strategies for children. क्या वो management होगा? हाँ, वो भी हाँ, मैनेजमेंट है, सब अप्लाइंग अ बिल्कुल सब्जेक्ट नॉलेज फॉर एनी हो सकता प्रोसेस, है। है ना, वो हो सकता है। Okay. और इसके बाद ऐसे लिख देते हैं तुम्हारे वाले को, एंड यूजिंग साइकोलॉजी एंड ठीक है। Okay, sir. What makes you eligible for this course? Your present knowledge, skills, exposure, ठीक है। I believe my understanding of psychology, scientific method of mind allows me to be eligible for this course. Psychology has helped me to become more self-aware, and I try to incorporate values, empathy, integrity, ठीक है। और स्किल्स तुम्हारे पास नहीं है कुछ, जैसे राइटिंग स्किल्स, ऐसा कुछ है? And you are Uh, writing well, I can tell, I can say that you have writing skills, ठीक है, okay, sir. this will help you. And I like public speaking. I mean, I don't know. पब्लिक जो भी स्किल्स है तुम लिख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग ऑफ कोर्स दिस कैन आल्सो हेल्प यू इन, मतलब Advocacy, हाँ, maybe. advocacy। तो इसमें जो एक्सपोजर से लिखते हैं ना, रिलेटेड इवेंट्स एंड डिस्कशंस, इसमें सारे बिल्स वगैरह तुमने लिख दिया होगा। गवर्नमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द गवर्नमेंट वाज इन अचीविंग द कोर्स ऑब्जेक्टिव, इसमें तुमने क्या लिखा है? I was not sure कि मतलब मैंने जो bills और regulation लिखा है वो government social infrastructure से अलग कैसे है? नहीं, वो उसी में आएगा। ये तो रिलेटेड इवेंट्स एंड डिस्कशंस में तुम कौन सा इवेंट रिलेटेड हुआ है, मतलब रिसेंटली, जैसे लास्ट ईयर को अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह Hmm. साइड, है ना, Hmm. तो दैट वाज एन इवेंट व्हिच बेसिकली मतलब स्टार्टेड द डिबेट फॉर साइकोलॉजी और ट्रीटमेंट, है ना, Right. डिसऑर्डर्स, ऐसा ऐसा कुछ। और भी जैसे अभी माइग्रेशन ये माइग्रेटेड लेबर, Migrant या crisis फिर हुआ था. हाँ. और फिर जो जॉब की क्राइसिस है ना, Right. so all these events have started the, तो ये इसमें वो सब लिखो कि साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी नहीं मतलब क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी के यूटिलिटी पे इस पे बात होती है अभी इस कारण। Right. So yeah. ठीक है, ये सब इसमें लिखना था। और जो बाकी जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, Yes, sir. उसमें तुम ये बिल डाल दो। ठीक है.
लेकिन यहाँ और चाहिए ना, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब हाउ डज गवर्नमेंट, तो जैसे मान लो यूनिवर्सिटीज है जो बेसिकली रिसर्च प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, हाँ यूनिवर्सिटीज जो है वो रिसर्च प्रोवाइड करती है। फिर आपका जैसे मान लो अगर इफ यू आर नॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेसिकली उनका एक पॉलिसी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, तो पॉलिसी रिलेटेड भी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब हाउ डू दे एग्जीक्यूट दोस पॉलिसी। सर, आई हैव टू लुक इनटू इट कि मतलब वो अलग अलग ग्रुप्स नहीं होते, आंगनबाड़ी होता है, ऐसे ग्रुप्स हाँ, के थ्रू ये तो लोग करते कैसे, हैं काम। हाँ कैसे करते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अब जैसे तुम यहाँ पे देखोगे, क्या बोलते हैं दिल्ली में, जो कई सारे हॉस्पिटल है ना दिल्ली में भी गवर्नमेंट के, जैसे इल्हास है, इल्हास हाँ, सॉरी, यस यस, हाँ। तो जैसे वो पूरा सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो बताओगे ना। ओके ओके। मतलब गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कोर्स तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाता है ना, बट हम्म। गवर्नमेंट अपने एंड से कैसे डील करती है। सिमिलरली जैसे अगर डॉक्टर, आप मेडिसिन पढ़ते हो, लेकिन मेडिसिन का एक पर्पस है कि आप पूरे सोसाइटी को हेल्दी रखना चाहते हो, चलो आप इसमें ये यस आपने ये लेकर चला, एम लेकर चला, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है ना, वो हेल्थ पॉलिसी बनाती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सेंटर्स क्रिएट करती है। हम्म। सिमिलरली व्हाट डू दे डू फॉर मेंटल हेल्थ। ओके ओके सर, तो लुक इनटू इट। हाँ, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो एक बार। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में क्या है, मतलब अच्छा, ये इंडिया में फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड लैब फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश इन ये। इसके बाद तुमने नहीं लिखा आगे, मेजर मेजर की मतलब वो देते ना, टाइमलाइन देते कुछ, अच्छा, ठीक है सर। है ना, फिर हमने कब मतलब मेंटल हेल्थ को कब वो लिया, मतलब इनटू, मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिसीज में कब हमने ऐड करना शुरू किया, हम्म। ये सब चीजें। ठीक है। नेबरहुड के इशूज क्या है, पार्किंग एंड limited space. पार्किंग। Okay. Solution could be mandating split parking facilities as a all new structured constructed residence. या ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग अगर गवर्नमेंट रेडी कर दे हम्म। अंडर द रोड, और हाँ। ज्यादा पब्लिक पार्किंग तो स्पेसेस। उसमें उसमें ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट कि मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग या कुछ ऐसा पार्किंग प्रोविजन डेवलप करके दे कैन अलॉट पार्किंग फॉर इंडिविजुअल्स, दैट्स है इट। ना, हाउस होल्ड के हिसाब से। ठीक है, और योर बैकग्राउंड एंड हॉबीज, आई कम फ्रॉम साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। देखो थोड़ा इसमें ना बैकग्राउंड तो हम लोग ऊपर से पढ़ ही रहे हैं, एलिजिबिलिटी वाला जो है वहाँ पे साइकोलॉजी का, हम्म। इसमें जैसे तुम जिस घर से, जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, जिस प्लेस से बिलोंग करते हो, है ना, जिस ओके। तरह की स्कूलिंग हुई है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से अगर स्कूलिंग हुई है उसका बेसिकली लिखना है। ठीक है सर, ओके। एंड आई थिंक मतलब मैंने तो ऐसे सोचा था कि जैसे कोई नहीं, मेरा वो मुझे बैचलर्स लगता है का। ना वो तुम्हारे पास अपडेटेड वाला डॉक्यूमेंट गया नहीं है, ठीक है, ये अपडेटेड वाला हम रिसेंटली लग रहा है कई लोगों को मैंने यही भेज दिया है, तो अपडेटेड वाले में आई हैव क्लैरिफाइड दैट ओके। कहाँ पे किस चीज का क्या मतलब है, तो अभी थोड़ा इसीलिए तुम्हें वो लग रहा होगा, रिपीटेशन लग रहा होगा मडेनी में। तो वर्क एक्सपीरियंस, नो पेड वर्क एक्सपीरियंस, कोई तुमने इंटर्नशिप नहीं किया है क्या, और चेक मैंने किया था, इंटर्नशिप्स नीचे लिखे थे, हाँ। ठीक है, ऑफलाइन इंटर्नशिप और वर्टिकल किया, कर्मा काउंसलिंग, ठीक है। तो हॉबीज तुमने लिखा नहीं, ओ राइट, हॉबीज। तो हॉबीज होगा अभी तो क्या लिखोगे बताओ। So I like music. I नहीं तो enjoy जो debating. मूवीज तुमने लिखा था, हाँ।
ना, तो how does it build your capability and makes you eligible for the course? I think movies can play a very pertinent role, important role in psychoeducation. So it's like जो well crafted movies होती हैं, well researched movies होती हैं, वो sort of वेरी आपको गुड, बस यही चाहिए था, हो okay, गया, ठीक। ठीक है। मतलब आपको एक प्री आइडिया दे देते हैं कि वेयर हम्म पीपल हैज बीन वर्किंग, है ना, भले ही थोड़ा ड्रामेटिक होता है ना, हम्म but it gives you lot many type of things or keywords or jargons, राइट। है ना, प्लस जो mix बुक्स में दिया होता है वो कभी कभार रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होता है वो समझ नहीं आता, तो मूवीज आर exactly अ गुड वे टू अंडरस्टैंड। manifestation of theory, क्योंकि हर जगह आप जाके किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, but if somebody has done well research और एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके अगर उसको मूवी बनाता है तो this can give you idea about it। तो जैसे कोई कोई रिसेंट मूवी बना बताओ तो जिसको तुमने इस पर्सपेक्टिव से देखा है। रीसेंट मूवी मैंने शाटर आइलैंड देखी थी जो स्किज़ोफ्रेनिया पे थी और इन पेशेंट केयर पे थी। अच्छा, शटर आइलैंड और Shutter Island था, and then there was what was that movie called? Um, Misery. वो थी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। क्या था नाम, मिजरी? मिजरी स्टीफन किंग की एक नॉवल पे बेस्ड है, उसका अडेप्टेशन। अच्छा, तो स्टीफन किंग तो ऐसे कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं थे ना? नहीं, वो एक्चुअली हॉरर ज्यादा लिखते थे, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट कैसे एक्चुअली साइकोलॉजिकल फिनोमेना को सुपरनैचुरल समझा जाता है। अच्छा, कोई वो नहीं देखा तुमने जैसे संपदा, कैन यू टेल some of the movies or series which basically has been developed with the help of psychology? So, I can't remember a movie which has been developed with the help of psychology, but there is a movie called A Beautiful Mind. Oh yes, That I've is seen that. Yeah, that is also on schizophrenia. It's very nice. yeah. तुमने It's ये a नहीं real देखा, story. माइंड हंटर्स नहीं देखे तुम लोगों ने? ओ मैंने माइंड हंटर्स So, पूरा नहीं किया, ऐसा देखा है थोड़ा तो सा। मैंने देखी नहीं है। देखा ही नहीं है तुमने संपदा? नहीं सर, नहीं सर। तुम्हें बिल्कुल देखना चाहिए, पता है, माइंड हंटर्स देखना चाहिए तुम लोगों को, अमेरिकन साइको देखना चाहिए तुम हाँ लोगों को, देखिए हाँ ऐसा। सर, वो तो देखी है। यू शुड आल्सो वॉच ये क्या बोलते हैं इसको, मास्टर्स ऑफ सेक्स, ये भी देखना चाहिए, सीरीज है, हम्म although it's not entirely psychological और ये physiological psychological mix है ना, हम्म but these are good stories, well researched। अमेरिकन साइको तो फिर भी एक तरह से तुम कह सकते हो कि हाइपोथेटिकल उस पे सिचुएशन क्रिएटेड है, हाँ but जी mind सर। hunters and masters of sex are हम्म basically the research that they have been doing, उसी का हम्म। वो है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और ओह, ओके लास्ट ओके। ईयर आई हैव सीन अ मूवी व्हिच इज कॉल्ड प्रोफेसर, क्या है, वंडर वुमन करके, एक मिनट, प्रोफेसर वंडर वुमन, ओके। हाँ, प्रोफेसर वैटसन इन द वंडर वुमन, हम्म ओह, ये भी तुम लोग को देखना चाहिए। ठीक है ओके। सर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग से ज्यादा मैंने साइकोलॉजिकल वाली मूवी देख रखी है और सीरीज देख रखी सो साइकोलॉजिकल मूवीज मुझे इसलिए भी देखनी पड़ी थी क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, तो जो एमएससी का प्रैक्टिकल था वो है। करने का यही तरीका था, और डिपार्टमेंट से कि वॉच मूवीज एंड देन यू डायग्नोस द इंडिविजुअल। सो मैंने अमेरिकन साइको, शटर आइलैंड वैसे भी एनालाइज किया। अच्छा, नहीं तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे अमेरिकन साइको तो चलो फिर भी, और शटर आइलैंड और हाइपोथेटिकल इन नेचर, है ना, देयर आर few movies, I am forgetting some of the names also, which has been basically made with the, मतलब होता है ना कि एकदम माइन्यूट डिटेल रिसर्च करके बनाया गया जिनका, ओके सर। यस तो सर। ये वंडर वुमन ही है ना, ये तुम लोग देखना, ठीक है, एंड देयर आर अदर्स आल्सो, मतलब आई जस्ट फॉरगेट द नेम, वो मैं बताऊंगा अगर तुम्हें मिलता है तो।
रीजन टू शिफ्ट फील्ड, आई हैवंट शिफ्टेड फील्ड, माय बैचलर वाज इन सर्विस, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर, ठीक है ये तो इनवैलिड है तुम्हारे केस में, ये कदम मेरा ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, रीजन बिहाइंड चूजिंग द कमीशन एक ही तुमने चूज किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है ये सारी चीजें तो तुम्हारी, तो ये तो चलो ये सेकंड और थर्ड तो टेस्ट के ही सेंस में है। रीजनल पॉलिटिक्स में क्या लिखा है तुमने? दिल्ली का लिखा है कि एमपी, मतलब मीनाक्षी लिखी तो सेंट्रल दिल्ली की एमपी है ना? हाँ सारा मुझे साउथ मीनाक्षी साउथ दिल्ली में लेखी नहीं आता पसंद क्या? थी। पता नहीं सर। तो एक्चुअली ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी थोड़ा लो ही है। नहीं फिर भी तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना वो इज योर एमपी, मेरा तो पूछ सकता है, एंड सी अब तुम पॉलिटिक्स में कम इंटरेस्ट रख सकती हो बट पॉलिटिक्स तुम में बहुत इंटरेस्ट रखता है, ठीक है? यस सर, यस हम्म, सर। तो इसलिए आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योरसेल्फ, एंड पॉलिटिक्स, इनफैक्ट पॉलिटिक्स पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है और पॉलिसीज आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है एट द सेम टाइम, द फील्ड वेयर यू आर गोइंग वहाँ पे भी पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, and then again that will comes or that will come through politics only, ठीक है? यस तो सर। इसलिए पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एमपी पक्का मीनाक्षी लेखी है सीआर पार्क की? हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। तो तुमने लिखा कैसे? मैं तो मम्मी से पूछा था। अच्छा तुमने पूछ लिया, थोड़ा बहुत देख नहीं लिया तुमने? साउथ ईस्ट दिल्ली में आता है ये? अ, नहीं नहीं नहीं, मीनाक्षी लेखी नहीं है। रमेश भदूरी है कोई, रमेश भदूरी, साउथ साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा आई है, थिंक सो। साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यस रमेश भदौड़ी। बट फिर भी इसमें देख लेना, हो सकता है कि तुम्हारा जो सीआर पार्क है दैट माइट कम अंडर मीनाक्षी लेखी का वो एरिया, क्योंकि इसमें तो नहीं ओके। दिया हुआ है चितरंजन पार्क, सीआर पार्क, ये तो तुमने वो कर दिया, एक मिनट, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने बोला है तो हो सकता है सही ही बोला हो। So Meenakshi Lekhi has visited couple of times यहाँ पे, तो maybe I don't know. हाँ तो वो देख लेते हैं ना, करोल बाग यही सेंट्रल दिल्ली तो हमें आइडिया है बट सीआर पार्क तो इसमें नहीं है, बट हाँ तुम कंफर्म कर लेना क्योंकि यहाँ ठीक पे है भी सर। नहीं है सीआर पार्क लिखा हुआ, तो I don't know, ये साउथ ईस्ट दिल्ली में कस्तूरबा नगर तो नहीं आता तुम्हारा वो एरिया? नहीं, तो नहीं कस्तूरबा नगर, जीके जीके कैलाश कॉलोनी कालका जी, ये एरिया है। जीके कहाँ पे है? अच्छा ये ग्रेटर कैलाश वाला ग्रेटर एरिया, कैलाश, हाँ। अच्छा ठीक है तुम देख लेना उसको एक बार कंफर्म कर लेना। एमएलए तो अच्छा सौरभ भारद्वाज एमएलए है, ठीक है तब तो वही होगा, अगर सौरभ भारद्वाज एमएलए लिख रखा है। हाँ तो यहाँ पे तुम कॉलेज के नाम लिख देते है ना, वहाँ पे जो प्रेफरेंस है ना सेकंड और थर्ड वो टेस्ट के लिए ही था। अ, हाँ। एकेडमिया, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है ये तुम्हारा आइडेंटिटी पे प्रेजेंट हो, ठीक है व्हाई डू वांट टू बी इन टेस्ट, इसमें क्या लिखा है तुमने? The institution is known for its fine tuning of its course structure to provide a balance between theoretical understanding and application in the field. जब कोर्स पे ही बात कर रहे हो तो इसको ये भी लिख सकते हो ना कि adaptation with the changing requirement is very high here, एज इन सर। मतलब सिलेबस को अडेप्ट करते रहते हैं चेंज के ओके। हिसाब से,
मतलब जो करंट नीड है, जो एक्सटर्नल सोसाइटी की नीड है, उसके हिसाब से। यही तो डीयू या और किसी कॉलेज की साइकोलॉजी से क्यों बेटर हो जाता है, बिकॉज डीयू में मतलब बहुत सिलेबस को पुराना चेंज करना सिलेबस इज है। अ बिग डील। आप यस। पहले क्रिएट करो, फिर वो मीटिंग बैठाओ, एक क्लब बनाओ, फिर जाके वो वीसी से पास कराओ, तब जाके वो सिलेबस चेंज करता है। तो वो 8 से 10 साल में एक बार वो लोग एफर्ट डालते हैं, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे तो टेस्ट में यू फाइंड की 5 से 10% चेंज तो वो हर साल करते हैं, है ना। राइट राइट सर। अब जैसे अभी पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक के कारण जितनी भी चीजें आई उसके उसके लिए वो मतलब वो चेंजेस वो करेंगे, वो अपने स्टडी में, करिकुलम में, अपने प्रोजेक्ट्स में वो डालेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा। हाँ ठीक है सर। सर एक डाउट था